afternoon everyone. Today we are going to see one of the best decision making statement named as switch statement. Okay. Switch statement. Right. Now what do we mean by switch? Okay. जनरल लाइफ में स्विच का मीनिंग क्या है? मतलब हम अक्सर बोलते हैं कि यार ये बंदा स्विच कर दिया, इस बंदे ने स्विच कर दिया, ठीक है, हम ऐसी बातें करते हैं. मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो बंदा वो बंदी स्विच हो जाता है और उसे जो सही लगता है वो एग्जीक्यूट करता है. सेम हैपन्स इन प्रोग्रामिंग. इन प्रोग्रामिंग एज वेल वी हैव अ स्विच स्टेटमेंट. यूजर क्या इनपुट देता है, यूजर क्या इनपुट देता है इस पे डिपेंड रहेगा कि क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी यूज स्विच स्टेटमेंट. ओके. नाउ इससे पहले हमने देखा है इफ स्टेटमेंट. देयर इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, ये सारी चीजें देखी है. लेकिन हर एक में क्या है? पर्टिकुलर कंडीशन है. कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. स्विच में क्या होगा? वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा. जो इनपुट यूजर देने वाला है वो इनपुट का वैल्यू अगर पर्टिकुलर केस से मैच होता है तो दैट पर्टिकुलर केस विल बी एग्जीक्यूटेड. यू विल गेट इट बेटर विद द सिंटैक्स. switch in bracket variable, then we have case 1, block 1, break. Case 2, block 2, break. Case 3, block 3, break, and at last we have default and then default block. Okay, this is the syntax for switch statement. अब यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छे से जानने दो. We know that we have already learned all the keywords. Switch is a keyword. Which is what? Keyword, right? Also, case and break. Case, break. These are also keywords. Default is also keyword. So here you can say switch, case and break are the keywords we have used in the syntax. Now what happens? If this variable value, listen very carefully, if this variable value matches with particular case label, this is called as case label. इसमें क्या बोलेंगे हम? केस लेबल बोलेंगे. अगर मान लो कि ये वेरिएबल की वैल्यू इस केस 1 से मैच होती है तो क्या होगा? ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड and after the execution of block we have used break statement, and due to this control will go outside of the block. Okay, if the variable value does not match with the case 1, what will happen? It will check case 2. It will check case 2. Now if the variable value is matching with the case 2, what will happen? Block 2 will be executed, and after the execution of block 2, here is again we have break statement, and hence control goes outside of the block. If variable value does not match with 1, does not match with the case 2, then does not, and it matches with the case 3, what will happen? It will execute block 3, and after the execution it will break the control and take the
control outside of the block. That's it. Now what will happen? Now consider if the variable value does not match with any cases. Here I have taken 3 cases, right? But if it does not match with any of the cases, then we have default block. अगर कोई भी केस से मैच नहीं होता है तो क्या होगा? डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ड्यू टू द डिफॉल्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ क्या होगा? मतलब वेरिएबल की वैल्यू अब यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, लेकिन मान लो इनपुट आ गया 5, इनपुट कुछ अलग ही आ गया, वो तो केस में है ही नहीं. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिनमें तुम मैसेज कोई प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि रॉन्ग चॉइस या फिर रॉन्ग इनपुट गिवन, ऐसा कुछ मैसेज तुम प्रिंट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड द स्विच स्टेटमेंट. टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी विल गो फॉर द फ्लो चार्ट. इसको फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं. यहां क्या हो रहा है? वेरिएबल की वैल्यू कितनी है ये चेक होगी. वेरिएबल की वैल्यू कितनी है ये चेक होगी. अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल वी हैव if it is case 1, what will happen? It will execute block 1 if it matches with the case 2. It will execute block 3. केस 3 अगर मैच होता है तो क्या होगा? केस 3 से अगर मैच होता है तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा. एंड इफ इट डज नॉट मैच विथ एनी ऑफ द केसेस, देन एट लास्ट वी हैव default block, right? Default block. And after the execution of any block, control will go outside of the block. One more important thing here, it will execute either block 1, block 2, block 3 or block default. Okay, it will not execute these 2 blocks at a time or these 2 blocks at a time or all of the blocks at a time. It can execute only one block at a time. Okay, so this is the flow chart of the switch statement. Okay, और अच्छे से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है स्विच स्टेटमेंट को, इसे समझेंगे. Now, suppose we are going to perform a switch statement on एक कोई भी जनरल लाइफ का प्रॉब्लम लेते हैं. क्या हो सकता है? क्या ऐसी चीज है जो चेंज होती है और उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग आउटपुट आ सकता है इन जनरल लाइफ? कोई भी एक एग्जांपल लो, वो उस एग्जांपल को लेके हम स्टार्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल. अब मान लो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, राइट? कैलकुलेटर का सिंपल एक प्रोग्राम है. अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो एडिशन होनी चाहिए, 2 प्रेस करता है तो सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए, 3 प्रेस करता है तो मल्टीप्लिकेशन एंड 4 प्रेस करता है तो डिवीजन. अब ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग सेक्शन. Now void main. In this main function we have to perform addition, subtraction, multiplication, division. So the minimum inputs we need 2 inputs we need, int a comma b, and outputs we will have 4 different outputs we will have, like add, sub, mul and div.
So add sub multiplication and float div. Why I have taken division in a float? Because there are some chances that answer can be in a point. If I perform 3 by 2, the answer should be 1.5, right? So इसलिए we know that integer does not allow such values. Who allows? Float allows. That's why I have taken float division here. Then we have CLR, SCR, clear screen. After that, I am going to print a message. Enter first number. After that, we have to scan the value from the keyboard. That's why %d, comma, address of A. Now, why %d? Because A is of a integer type. A is of integer type. Okay. Printf, enter second number. After that, scanf, %d, comma, address of B. Okay. Now, we have successfully scanned both the values. Okay. Now it's time to ask the user which operation he wants to perform. यूजर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है ये हमें पूछना है. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक अगर 1 प्रेस करता है तो एडिशन होनी चाहिए, 2 प्रेस करता है तो सब्सट्रैक्शन एंड सो ऑन. ओके, सो वी हैव टू टेल द यूजर, वी हैव टू शो यूजर what kind of operation we can offer. That's why %printf 1 addition. Okay, and after the addition I want output like this 2.2 subtraction. So to do so we have \n. \n की वजह से क्या होगा, नीचे प्रिंट होगा रिजल्ट 2 subtraction 3 multiplication and 4 division, right? Okay, now what we need to do here, we need to scan the value from the keyboard. अब जैसे कि यूजर क्या करेगा, एक तो 1 प्रेस करेगा, 2 प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा या फिर 4 प्रेस करेगा. ओके, तो जब यूजर कुछ प्रेस कर रहा है दैट मीन्स कुछ इनपुट आ रहा है यूजर से, तो वो स्टोर करने के लिए हमें और एक वेरिएबल लगेगा. सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल हियर नेम्ड एज चॉइस. चॉइस नाम का क्या है वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा. अब जब मैं चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, अब ये किस लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, टू स्कैन द इनपुट फॉर दिस ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. यूजर प्रेस करेगा ना 1 या फिर 2, तो 1 2 कहां जाके स्टोर होगा, चॉइस में. दैट्स व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड चॉइस. नाउ इट्स टाइम टू पुट स्विच स्टेटमेंट. बिफोर स्विच वी हैव टू पुट scanf, राइट? मतलब ये स्कैन करने के लिए चॉइस, scanf %d, comma, address of choice, right? choice scan हो गई. we have to compare switch choice. now we have different cases. we have first case as addition. so case 1 इसमें एडिशन का प्रोग्राम रन होना चाहिए. अब 2 इनपुट हमने ऑलरेडी ले लिए. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट लाइक add is equal to
a plus b, okay, add is equal to a plus b, and then I am going to print the result of add. Addition is that's it. मतलब अगर यूजर प्रेस 1 अगर प्रेस करता है तो इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू ब्रेक इट. The control will go outside of the block, okay, and if user press option number 2, यूजर क्या करता है 2 प्रेस करता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए, sub is equal to a minus b and printf subtraction is, okay, after the execution it should break the block. If it does not match with the 1 or 2 and he wants to perform multiplication, then we have mul is equal to a multiplied by b printf multiplication is percentage d comma mul. Why we are writing percentage d? Because इसके बाद इस टेक्स्ट के बाद क्या कोई इंटीजर प्रिंट होने वाला है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं परसेंटेज डी. और वो इंटीजर कहाँ स्टोर है, ऐड में. ये इंटीजर कहाँ स्टोर है, सब में. ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में, जो कि इससे जनरेट कर रहे हैं हम फॉर्मूलाज से, ओके. एंड आफ्टर दिस ब्रेक, printf division is okay. These are the 4 cases we have given. 4 केस है, 4 केसेस हमने डाल दी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब मान लो यूजर क्या करता है 1 2 3 4 इस इनपुट के अलावा, इस ऑप्शन के अलावा क्या करता है 5 6 7 8 कोई भी एक रैंडम नंबर डालता है. सो वी हैव टू प्रिंट समथिंग जो वो रिप्रेजेंट करे. जैसे कि वी हैव डिफॉल्ट ब्लॉक. In that block I am going to printf wrong input. That's it. And इसके बाद मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है. Why? Because default block is the last block of the switch statement. डिफॉल्ट ब्लॉक क्या है, लास्ट ब्लॉक है स्विच स्टेटमेंट का. अब लास्ट ब्लॉक होने की वजह से ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूशन होने के बाद स्विच स्टेटमेंट खत्म ही हो रहा है, तो यहां से डायरेक्ट कंट्रोल कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू यूज printf thank you get ch bracket close. This code is executable. कोड प्रॉपरली तुम प्रोग्राम करोगे ये जरूर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी, हम डिफरेंट केसेस रन करके देखते हैं कि स्विच काम कैसे करता है. ओके, नाउ एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे पहले क्या होगा, देखो int a comma b comma add sub mul choice. That means we have created space in memory. A b add sub मल चॉइस एंड डिवीजन. ए का बी एड सब मल एड सब मल चॉइस, और ये हो गया डिव. इतने स्पेस क्या हो गए मेमोरी में क्रिएट हो गए, एंड ईच स्पेस हैव अ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस. राइट नाउ CLR SCR जो भी स्क्रीन पे पुराना आउटपुट था वो क्लियर हो जाएगा. देन
वी हैव प्रिंटेड मैसेज ऑन स्क्रीन. अब ये तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन है मान लो. ओके, आउटपुट स्क्रीन है. अब क्या होगा, प्रिंटर एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर. इस तरीके से मैसेज प्रिंट होने के बाद कर्सर अभी यहाँ पे, और तुमने इनपुट दिया मान लो 10, मतलब क्या, ए में वैल्यू क्या हो गई 10 जाके स्टोर हो गई. नाउ यू हैव प्रिंटेड अनदर मैसेज एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, तुमने दिया 20, क्या स्टोर हो गया 20 जाके स्टोर हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस, प्रिंटफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब प्रिंट होगा. अब भले ही ये एक लाइन में क्यों लिखा ना हो, यहाँ पे बैकस्लैश n इस्तेमाल किया है मैंने, इसलिए प्रिंट कैसे होगा, एडिशन एक के नीचे एक, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. राइट नाउ कर्सर ब्लिंक्स हियर, कर्सर वहीं पे है. अब क्या कर रहे हैं हम, यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं कि तू एंटर कर, बिकॉज ऑफ दिस scanf स्टेटमेंट. scanf %d एड्रेस ऑफ चॉइस, मतलब ये जो चॉइस है, ये ब्लॉक जो है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम कुछ ना कुछ इनपुट देना चाहिए. मान लो तुमने क्या किया 1 इनपुट दिया, यहाँ पे तुम क्या इनपुट देते हो 1, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल जाता है स्विच के पास. नेक्स्ट इज अ स्विच स्टेटमेंट, इसके नीचे स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब क्या, स्विच चॉइस. नाउ वी नो दैट चॉइस में क्या स्टोर है 1. अब कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा हर एक केस लेबल, केस के सामने नंबर्स या फिर अल्फाबेट या फिर सिंबल्स आप लिख सकते हो, और उनको हम बोलेंगे केस लेबल्स. केस के सामने इसलिए केस लेबल्स. इफ दिस वैल्यू मैचेस विथ पर्टिकुलर केस लेबल, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ 1 है, केस 1 मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है. 1 वैल्यू है चॉइस की, केस की वैल्यू क्या है 1, मैच हो रहा है. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. और आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 10 20, a प्लस बी स्टोर हो गया ऐड में, ये मेमोरी का जो यूज हो गया ये वाला, राइट 30 स्टोर हो गया. नाउ प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, एडिशन इज 30, ऐसा प्रिंट होगा, एडिशन इज 30 ऐसे प्रिंट होगा. और ये प्रिंट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, कंट्रोल ब्लॉक के बाहर, स्विच स्टेटमेंट यहां चालू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, तो ब्लॉक के बाहर का स्टेटमेंट क्या है थैंक यू, तो डायरेक्टली अब क्या प्रिंट होगा थैंक यू. दिस इज हाउ इट विल एग्जीक्यूट. आई होप यू गेट इट. और एक केस देखते हैं, अगर मान लो यूजर क्या करता है 3 प्रेस करता है, 3 प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये तो पूरा जैसे कि वैसे एग्जीक्यूट होने वाला है. इसके बाद मान लो क्या करता है यूजर 3 चॉइस, क्या करता है 3 चॉइस करता है. नाउ चॉइस की वैल्यू कितनी हो गई 3. 3 is matching with this 1, yes or no? No, right? Is that 3 matching with this case 2? No, but 3 is matching with case 3. That's why this particular block will be executed. Multiplication 10 into 20 कितना हुआ 200, right? 200 इसमें स्टोर हो गया. प्रिंटफ स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज, यहाँ पे एडिशन की जगह क्या होगा मल्टीप्लिकेशन इज, ऐसे प्रिंट होगा, मल्टीप्लिकेशन इज 200 ऐसे प्रिंट होगा. एंड ड्यू टू द ब्रेक स्टेटमेंट अगेन ब्लॉक के बाहर आएगा, और कौन सा प्रिंट होगा मैसेज थैंक यू. एंड लास्ट केस मान लो ऐसे चारों केस एग्जीक्यूट हो गए, और अगर मान लो तुमने कुछ गलत इनपुट दिया है 5 6 7 8 या फिर कोई रैंडम नंबर, तो चॉइस मान लो तुमने दिया 9 नंबर, 9 is not matching with any of the case label. ना 1 से मैच हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, किसी से मैच नहीं हो रहा है. That's why particular default block will be executed. स्क्रीन पे डायरेक्टली मैसेज प्रिंट होगा wrong input, डायरेक्टली मैसेज प्रिंट होगा
wrong input, and after the wrong input thank you print hoga and program will stop. So this is how particular switch statement will execute. Thank you.